الحمد لله العلي الأكبر والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه السرج الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، اور کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، اور یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا گل امید مہکتا دکھائی دے، سجدہ جہاں کروں وہی کعبہ دکھائی دے، سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، ہمارے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت، عالم نور کے پیکر لطیف، عرش الہی کے مسند نشین، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، صبح قیامت کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، مکی سردار، مدنی تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، شفیع روز شمار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، یعنی روح کائنات، حسن کائنات، علت کائنات، غایت دار کائنات، فخر کائنات، سرور کائنات، سرکار کائنات کی بارگاہ عالی جا میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ، عاشقانہ، خادمانہ پیش فرمائیں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے اور ابھی پتہ نہیں پروگرام کتنی دیر اور چلے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے ان مہمانوں کے علم و عمل عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے عزیز مکرم جناب حافظ و قاری محمد اعظم صاحب کے علم عمل عمر تقوی پرہیزگاری میں، کاروبار میں، روزگار میں، گھر بار میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں برکتیں عطا فرمائے، خوشحالی کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ پناہ ہے، بے پناہ احسان ہے اس کا کہ اس نے انہیں اور ان کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو یہ خوشی کا دن جو ہے دکھایا ہے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے، بس 15-20 منٹ میں جو کچھ بول رہا ہوں بس اس کا خالی ترجمہ سنتے چلیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا پیدا فرمایا۔ سمجھ رہے ہو اللہ کی نشانی؟ چاند اللہ کی نشانی،
सूरज अल्लाह की निशानी, शम्स व कमर अल्लाह की निशानी, शजर व हजर अल्लाह की निशानी, बहर व बर अल्लाह की निशानी, बरगो समर अल्लाह की निशानी, सीमो ज़र अल्लाह की निशानी, लालो गोहर अल्लाह की निशानी, ये ज़मीन अल्लाह की निशानी, ये आसमान अल्लाह की निशानी, ये समंदर अल्लाह की निशानी, ये पहाड़ अल्लाह की निशानी। इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, ये सफ़ा मरवा की जो पहाड़ियाँ हैं ना वो भी अल्लाह की निशानी। और अभी आपने मेराज शरीफ के हवाले से जो सुना वो भी एक अजीम अल्लाह की निशानी है। हज़रात गिरामी, ये जहाँ बड़ी बड़ी निशानी है अल्लाह ताला की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन निशानियों में से, उन्हीं निशानियों में से एक बड़ी निशानी को निकाह को अपनी निशानी फरमाया है। और बड़े खूबसूरत अंदाज में इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए, तुम ही में से तुम्हारा जोड़ा पैदा फरमाया। और पैदा करने का मकसद लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुमको सुकून हासिल हो जाए, सुकून मिल जाए। कुरान फरमाया सुकून मिल जाए। इस जोड़े में सुकून है कि नहीं है? वाकई में सुकून है। और अल्लाह ने आगे फरमाया वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, सुकून ही के साथ साथ हमने इस जोड़े में तुम्हारे दरमियान, यानी मियाँ बीवी के दरमियान, अल्लाह ने फरमाया हमने मोहब्बत भी रखी है, रहमत भी रखी है। लेकिन समझने वाले तो हों, फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सूझबूझ रखते हैं। ये कुरान की आयत है। और अल्लाह ने फरमाया फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, तुम उन औरतों से शादी करो जो तुम्हें पसंद हो। यानी अपनी पसंद का मतलब यह नहीं है कि लव मैरिज करो, पसंद का मतलब यह है कि तुमको भी पसंद हो, तुम्हारे घर वालों को भी पसंद हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, और इससे पहले फरमाया व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। अल्लाह ने फरमाया कि तुम में से जो लड़के हैं और जो लड़कियां हैं जिनके अभी रिश्ते होना बाकी हैं उनके रिश्ते करो, और जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उन्हें उनके जो है निकाह कर दो, उनकी शादियां कर दो। अल्लाह ने फरमाया इस चीज़ की फिक्र मत करना कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इस चीज़ की फिक्र मत करना कि तुम्हारे पास कारोबार नहीं है, इस चीज़ की फिक्र ना करना कि तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, इस चीज़ की फिक्र ना करना कि तुम्हारे पास मालो दौलत नहीं है, मालो सरबत नहीं है। कुरान फरमाता है इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह ने फरमाया निकाह करो, निकाह के जरिए बरकत होगी और अल्लाह ताला तुम्हारी मोहताजी को दूर फरमा देगा। यकूनु फुक़रा, अगर निकाह करने वाले चाहे लड़का हो या लड़की, आज तो माल के पीछे भागा जाता है, ये देखा जाता है बंगला है कि नहीं, ये देखा जाता है कि फ्लैट है कि नहीं, ये देखा जाता है कि घर में गाड़ियां है कि नहीं, और फिर दोनों तरफ से लेन देन का जो सिलसिला होता है। और फिर उसके बाद जो शादी करने वाला लड़की का बाप, कभी कभी लड़के वाला भी कर्जे में इतने डूब जाते हैं, 5-5 साल हो जाते हैं लेकिन कर्ज अदा नहीं हो पाता है। इसलिए मुसलमानों, कुरान फरमाता है बस अपना उनका जो है मेल देख लो, अगर मेल मिल रहा है मालो दौलत की फिक्र ना करो, अगर मालो दौलत की फिक्र करोगे तो ऐसे रह जाओगे। और इस अजीम निशानी जो मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे नबी ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है, इस सुन्नत में ताखीर हो जाएगी। और मैं पूरी चैलेंज के साथ कह सकता हूँ जब नबी की सुन्नत पर अमल किया जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में बरकत ना हो। इधर निकाह करोगे नबी की सुन्नत अदा होगी, उधर अल्लाह की बरकतें हासिल होंगे। ये कुरान की तालीम है। और सुना, बहुत तेजी के साथ वक्त नहीं है, हदीस पाक मुलाहज़ा फरमाए, मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। पाक सुने अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या माशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्न लहू विजा। मेरे नबी की हदीस पाक के रावी है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद, बहुत बड़े सहाबी हैं, बड़े पाए के सहाबी हैं। वो कहते हैं कि मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं या माशर शबाब, ए नौजवानों,
नौजवानों, क्या बात है, वाह। ए नौजवानों, मन इस्तताअ मिनकुम अल-बाअत फल्यतज़व्वज, तुम में का जो शख्स निकाह की सलाहियत रखता है, निकाह की सलाहियत का मतलब ये है कि हुकूक की अदायगी कर सकता है, नानो नफका भी अदा कर सकता है, तो आका ने फरमाया फल्यतज़व्वज, तो चाहिए उसको कि वो शादी कर ले। और उसकी वजह आका ने फरमाया फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, क्योंकि शादी जब कर लोगे गुनाह कम हो जाएंगे, तुम्हारे निगाह की हिफाजत होगी, व अहसनु लिलफरज, और तुम्हारी इज्जत की भी हिफाजत होगी, तुम गुनाहों से भी बचोगे और अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत भी अता फरमाएगा। और मेरे आका के इरशाद फरमाते हैं वमन लम यस्तती, और जो निकाह की सलाहियत नहीं रखता है, जो निकाह की सलाहियत रखता ही नहीं है, जो निकाह की सलाहियत नहीं रखता, हुकूक की अदायगी नहीं कर सकेगा, महर नहीं दे सकेगा, नानो नफका ना दे सकेगा, तो आका ने फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम, ऐसा शख्स रोजे रखे। हमारे वाले हर रोज़ों को मैं रोजे रखे, आका ने फरमाया क्योंकि जब वो रोजे रखेगा तो फ़इन्न लहू विजाउन, तो रोजे रखना इंसान के नफ्स की शहवत को मार देता है। मारने का मतलब यह है शैतानी वसवसे नहीं उभरेंगे। इसलिए आका ने कितना अच्छा पैगाम दिया। ए नौजवानों, एक गिरोह जवान, तुम जो हो, तुम में का जो शख्स भी निकाह की सलाहियत रखता है उसको चाहे कि वो शादी कर ले। और बताओ शादी करने का कितना फायदा, जो हदीस आप सुनते रहते हैं निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और सुन्नत का दर्जा नफल से ऊंचा होता है। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते हैं कि नफली इबादत से बेहतर है कि निकाह करना, नफल, क्योंकि सुन्नत का दर्जा ज्यादा है। तो निकाह सुन्नत है, नमाज के अंदर कुछ फर्ज होते हैं, कुछ वाजिब है, और कुछ सुन्नत है, कुछ नवाफिल है। हुजूर ने न फर्ज कहा, न वाजिब कहा, सुन्नत कहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नफली इबादत करते रहे पूरी जिंदगी और आप निकाह ना करें, जबकि निकाह की सलाहियत रखते हैं, तो मेरे आका को पसंद नहीं कि आप नफली इबादत करते जाएं। आका फरमाते हैं अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी इस निकाह, इस सुन्नत से, इस निकाह से एराज करेगा, बचेगा, वो हमारा नहीं है। मेरे आका फरमा रहे हैं सुन्नत अदा करो, निकाह करो, नफल से ज्यादा सवाब मिलेगा। कितनी बरकत है इसकी। एक और तेजी के साथ एक हदीस और मुलाज़ा फरमाए, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अद-दुन्या कुल्लुहा मताअ व खैरु मताअid दुन्या अल-मरअतु स्सालिहा। सुनो, ढूंढते ना, पहले घर वाले जाते हैं, फिर कोई जाता, फिर कोई जाता, बहुत कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आका फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र, हदीस पाक के रावी हैं, वो कहते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया अद-दुन्या कुल्लुहा मता, ये पूरी दुनिया, जमीन हो, आसमान हो, चांद सूरज, सितारे, सैयारे, फलक, मलक, सब पूरी दुनिया सामान है, बरतने का सामान है। व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, और पूरी दुनिया का जो सबसे बेहतर सामान है वो नेक औरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसको नेक बीवी मिल जाए, किसी नेमत से कम नहीं है। और अच्छे रिश्ते, अच्छी बीवियां, ये मालो दौलत से नहीं मिलती हैं, मुकद्दर से मिलती है। सुभान अल्लाह, मुकद्दर से मिलती है। बहुत तेजी के साथ एक हदीस और सुन ले, मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलना सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक सुने, मिशकात शरीफ की हदीस, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद दीन। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा वक्त नहीं है, वरना मैं इनकी तशरीह और तफसील करता, बस तर्जुमा सुनते जाएं। हजरत अबू हुरैरा हदीस पाक के रावी हैं, वो कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि औरत से शादी 4 वजहों से की जाती है। कितनी? 4 वजहों से। 4 वजहों से शादी की जाती है, सिर्फ 4 वजहों से। पहली वजह लिमालिहा, माल की वजह से, और जो माल की वजह से करता है उसका अंजाम क्या होता है आप खूब जानते हैं। 4 व्हीलर तो ले ली, मगर पैसे नहीं है पेट्रोल डालने के लिए।
पता चला 6 महीने में बेच दी। अब जब बेचेगा तो उसका ससुर नाराज तो होगा। बहुत हालत खराब हो रही, माल के पीछे भागे जा रहे। मेरे भाइयों, अपने सास ससुर ससुराल से उम्मीद मत लगाइए। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बेशक सुभान कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह बहुत खूब है। हुजूर ने फरमाया औरत से शादी की जाती है माल की वजह से, और दूसरी वजह फरमाई वाली हसबिहा, औरत के खानदान की वजह से, कि मेरा जो ससुर है ना वो चेयरमैन है, मेरा जो ससुर है ना वो विधायक है, मेरा जो ससुर है ना वो MP है, फला ये है, मेरी ससुराली ऐसे, मेरे ऐसे, मेरे वैसे। मगर मैंने दूसरी हदीस में पढ़ा है, जो औरत की इज्जत की वजह से शादी करता है, अल्लाह ताला उसको जिल्लत अता फरमाता है, जिल्लत जलील कर देता है। मेरे नबी ने फरमाया लिमालिहा, औरत से शादी की जाती है माल की वजह से, और दूसरी वजह औरत के हसब की, उसके खानदान की वजह से। और आका ने इरशाद फरमाया वली जमालिहा, और औरत से तीसरी वजह तो शादी की जाती है, औरत की खूबसूरती की वजह से शादी की जाती है, माल की वजह से, औरत के खानदान की वजह से, और औरत की खूबसूरती की वजह से। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वली दीनिहा, और औरत से जो शादी की जाती है औरत की दीनदारी की वजह से। बोलो सुभान अल्लाह। चारों की वजह हुजूर ने फरमाई, माल की वजह से, और खानदान की वजह से, और हुस्न व जमाल की वजह से, और दीन की वजह से। उसके बाद मेरे नबी फैसला फरमाते, आका इरशाद फरमाते हैं फस्फर बिज़ाति दीन, ए लोगो तुम माल वाली को पसंद मत करो, और औरत के जो बहुत अमीर ससुराल हो उसको भी पसंद ना करो, औरत के हुस्न व जमाल को भी मत देखो, बल्कि दीनदारी को देखो। ये देखो कि वो लड़की नमाज पढ़ती है कि नहीं, ये देखो कि वो लड़की कुरान की तिलावत करती है कि नहीं, तक़वा तहारत उसके अंदर है कि नहीं। परहेजगारी की बुनियाद पर तरजीह दो, इंशाअल्लाह परहेजगारी की बुनियाद पर अगर आपने तरजीह दी तो आपकी जिंदगी भी कामयाब रहेगी और आपकी आखिरत भी कामयाब रहेगी। बेशक सुभान अल्लाह। और दीनदारी का एक वाक़या सुन ले, तारीख इस्लामी तारीख के हवाले से, इस्लामी तारीख के हवाले से बस बात तो सुन ले, उसके बाद गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ 5-7 मिनट में। दीन की बात आ गई है, हुजूर ने फरमाया दीनदार औरत को पसंद करो, उसी से शादी करो, खूबसूरत भी होगी, कुरान की तिलावत भी करेगी, आपके लिए दुआ भी करेगी, आपके कारोबार के लिए दुआ करेगी, आपकी सेहत और सलामती के लिए भी दुआ करेगी। दीन होगा तो सब कुछ होगा। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लामी तारीख कैसी दीन के हवाले से। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फारूक आज़म, जिनके बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि उमर जिस रास्ते से आते हैं तुम्हें देखकर उमर, शैतान भी अपना रास्ता बदल देता है, भाग जाता है। उमर आ रहे हैं, हजरत फारूक आज़म का दौरे खिलाफत है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, मगर यही फारूक आज़म आज के नेताओं की तरह नहीं कि आराम से सो गए एसी चलाकर, गद्दे और सोफे और बेड सो गए, नहीं। उस वक्त के जो हाकिम होते थे वो रात को गश्त करते थे, बस्ती का जायजा लेते थे कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई प्यासा तो नहीं सो रहा है, किसी को माल दौलत की जरूरत तो नहीं है। अगर ऐसी कोई जरूरत हो तो बोलो अमीरुल मोमिनीन से जाकर, इंशाअल्लाह वो जरूरत पूरी करते थे। फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, तवाफ कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, रात के अंधेरे में कोई सपोर्ट नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, अकेले घूम रहे हैं फारूक आज़म। अचानक घूमते घूमते आप एक दरवाजे के, घर के दरवाजे पर खड़े हुए, उस घर से आवाज आ रही थी, तो सुने दीनदारी की बुनियाद पर औरत को तरजीह देनी चाहिए। एक घर से आवाज आ रही थी, क्या थी वो आवाज? एक लड़की अपनी माँ से कह रही थी, माँ तुमने दूध जो दूहा है, जो गाय होगी या भैंस होगी या ऊँटनी होगी, जो भी होगी, जो दूध दूहा है, इस दूध में पानी मत मिलाना। क्या फरमाया? पानी मत मिलाना। उस लड़की ने अपनी माँ से कहा। आज के दौर में अगर कोई लड़की अपनी माँ से ये बात कहते, बहुत बड़ी बात है। उस लड़की ने कहा कि माँ दूध में पानी मत मिलाना,
کیونکہ رات کی تاریکی میں اگرچہ وقت کا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ رات ہے تو کیا ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کہ یہ کون خاتون ہے جو اپنی ماں کو اس گناہ سے روک رہی ہے کہ دودھ میں پانی مت ملانا، کیونکہ آج بھی ہمارے سماج میں ایسا بہت ہو رہا ہے، دودھ کے اندر آدھا دودھ اور آدھا پانی، اور اب تو پانی دودھ ختم ہی کر دیا ہے، پاؤڈر بنا دیا ہے، انسان کی جان لے رہے ہیں لوگ، انسانیت کے دشمن بنتے جا رہے ہیں، دودھ کے نام پر کتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ تو نہیں کہتا آپ یہ کرتے ہیں، اگر کوئی یہ کام کرتے ہیں تو آپ دودھ 50 روپے لیٹر مت بیچیے، 60 روپے لیٹر مت بیچیے، آپ تو 80 روپے لیٹر بیچیے، لیکن دودھ ایمانداری سے پختہ اور پورا دودھ بیچیے، اور اس میں پانی مت ملائیے، کیونکہ ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، گناہ بھی ہے، سب کچھ، اتنی نحوست اور اتنا وبال آپ کے سر آ جائے گا۔ پیسہ آپ کما رہے ہیں، مزے دوسرے لیں گے، حساب تم کو دینا ہوگا، اس لیے بڑا گناہ ہے۔ وہ نیک خاتون، پرہیزگار خاتون، متقیہ خاتون اپنی ماں سے کہہ رہی ہے رات کے اندھیرے میں، ماں اگرچہ ہمیں امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو پروردگار عالم تو دیکھ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی اسی وقت اپنے گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد اپنے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بیٹے، رات میں اس گلی سے گزر رہا تھا، ایک خاتون کی میں نے آواز سنی، وہ خاتون اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ ماں رات کے وقت کہ ماں پانی میں دودھ میں پانی نہ ملانا، کیونکہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، فاروق اعظم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ فاروق اعظم اپنے صاحبزادے حضرت عاصم سے کہتے ہیں بیٹے، میرا دل چاہتا ہے کہ اتنی متقی خاتون کو، اس پرہیزگار لڑکی کو میں تیرے نکاح میں لے آؤں، کیونکہ پرہیزگار ہے، مجھے میں نے رات کی تاریکی میں نہ اس کا مال دیکھا، نہ اس کا گھر دیکھا، نہ زمین جائیداد دیکھی، نہ حسن و جمال دیکھا، نہ کچھ دیکھا، اگر رات کی تاریکی میں نے کچھ دیکھا ہے تو اس لڑکی کا تقوی دیکھا ہے، اس کی پرہیزگاری دیکھی ہے، اور میں جو تیرے نکاح میں اس کو لانا چاہتا ہوں اس کی پرہیزگاری کی بنیاد پر لانا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، حضرت عاصم راضی ہو گئے، حضرت فاروق اعظم نے نکاح کر دیا، اسی لڑکی سے نکاح کر دیا۔ فاروق اعظم چاہتے تو وقت کے خلیفہ تھے، امیر المومنین ہے، چاہتے تو کسی بہت بڑے گھرانے میں شادی کر سکتے تھے، بڑے سے بڑے اونچے گھرانوں میں شادی کر سکتے تھے، مگر فاروق اعظم کو کسی کی مال و دولت سے لالچ نہیں تھا۔ فاروق اعظم چونکہ خود بھی صحابی رسول ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اس لیے پرہیزگار لڑکی کو اپنے بیٹے کے نکاح میں لانا پسند کیا، اور جب وہ لڑکی آ گئی تو گھر میں اللہ کی رحمتیں آ گئیں۔ ارے توجہ ہے نا، بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، سنیں، اللہ کی رحمتیں آ گئی، برکتیں آ گئی۔ فاروق اعظم اس کو نکاح کر کے اپنے گھر لاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب نیک عورت گھر میں آ جائے تو قسم خدا کی اگر وہ پرہیزگار ہوگی تو اولاد بھی پرہیزگار ہوگی۔ جب میاں بیوی کا جو ہے میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس نیک خاتون کی کوکھ سے ایک ایسی بیٹی کو جنم دیا کہ جس بیٹی کے جنم سے، اس کی کوکھ سے پیدا ہونے والی ذات اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ولادت ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ کا پہلا خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ پیدا ہوتے ہیں، ایسی بیٹی کو اس لڑکی نے جنم دیا ہے۔ قربان جائیے، جب 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا جن کے علم و فن کا یہ عالم ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ ارے جب 14ویں صدی کے امام احمد رضا کے علم کا یہ عالم ہے تو پہلی صدی کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے علم و فضل کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में आपने बयान को सुना। अब आइए मैं भी नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इमामुद्दीन साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहमद रजा भाई को दावत दो। माशाअल्लाह हज़रत स्टेज पर जलवा फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना इमामुद्दीन तहसीन साहब क़िबला, और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से उलमाए इकराम का दीदार फरमा रहे हैं। अब आइए बड़े अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद